welcome back to our channel, the Legalite Academy. And in today's current affairs class, we'll be talking about a very important topic, which is Olympics 2024. अब आप सोच रहे होंगे हम ओलंपिक से क्या क्या पढ़ के जाएं कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट ही इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचे। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना है और सबको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिक्वायर्ड है। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज about our Olympics. About Olympics, I will be dividing it into four main topics. Number one being the origin. Olympics के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? Olympics began in Athens, Greece around 776 BC. Now, you would have read somewhere that the Olympics are divided into ancient and modern. That is not much of relevant for your exam. Just you should know they were revived as a modern Olympics only in 1896 by a person called as P.D. Cloverton. After P.D. Cloverton gave us or revived the Olympics were further divided into two. Number one, the Winter Olympics, and the number two, the Summer Olympics. Winter Olympics are held every 4 years in the same way as the Summer Olympics. तो अब आप सोचेंगे कि मैम अगर इस साल भी समर ओलंपिक्स हो रहा है जो कि पेरिस में हो रहा है तो क्या ऐसा होगा कि इस साल भी विंटर ओलंपिक्स होगा? जी नहीं, यही आपके लिए जानना जरूरी है कि जिस साल समर ओलंपिक्स होस्ट होता है हमारा विंटर ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर होस्ट किया जाता है. कैन यू मेक आउट दिस डिफरेंस? बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन पॉइंट हियर दैट बोथ द ओलंपिक्स आर हेल्ड at a gap of 4 years. So the next important thing which you should know about Olympics is what are the symbols and traditions. Before we come to this important topic, let us understand about Olympic rings. As you know, Olympics is best depicted by the 5 rings. The 5 rings are of blue, red, yellow, black and ग्रीन. कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ओलंपिक रिंग्स आज के लिए इतने रेलेवेंट क्यों है. जान लेते हैं. द 5 ओलंपिक रिंग्स डिपिक्ट द 5 कॉन्टिनेंट्स. द 5 कॉन्टिनेंट्स दैट इट डिपिक्ट्स आर अफ्रीका, एशिया, अमेरिका एंड ओशिनिया. ओशिनिया में आपको पता होना चाहिए कंट्रीज कौन सी आती हैं, which is Australia and the nearby islands, especially New Zealand. After that, we will be talking about what are the symbols and the traditions associated with Olympics. Olympics has been a very ancient game. That is why a most prominent game even in today's time. Much of it to know that who will host the Olympic. कैसे पता चलेगा कि मैम पेरिस ही होस्ट करेगा या फिर पेरिस नहीं तो हम कोई और सिटी ले सकते हैं? This is decided by an international Olympic committee where the countries who want to host the Olympics will submit their resolution and this resolution will be voted upon by the committee. They will decide on several factors. Factors can be क्या expenditure है, क्या plan है, क्या facilities available है, क्या गेम्स को कराने की कंडीशन है उस देश की या नहीं, क्या वो किसी वॉर में तो इन्वॉल्व नहीं है. को ध्यान में रखते हुए they are going to host or give the country permission to host that Olympics. After we have understood the origin of Olympics, let us come कि Paris Olympics के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए. The first and the most important thing about Paris Olympics that you should know that Paris Olympic is going to happen from July 26 to 11th August 2024. ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लग सकता है या अटपटा भी लग सकता है कि मैम why it is such a small time period. See, you will realize over the time the country which is hosting this Olympics should divide the cities upon various games. उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में इंडिया को भी ये मौका जरूर मिलेगा. कमेंट करके बताइएगा कि कभी इंडिया ने ओलंपिक्स को होस्ट किया है. देखते हैं आप लोगों को कितना पता है. The next important thing is an opening ceremony. आप कभी भी किसी बड़े स्तर को गेम को होस्ट करते हैं then we need to have something which is called as an opening ceremony. For the opening ceremony this year, this ceremony has been very different from all the rest of the years. आप सोचेंगे मैम अलग कैसे रहा इस साल? इस साल
फ्रांस में पेरिस में डिसाइड हुआ कि ये ओलंपिक हम एक रिवर के पास होस्ट करेंगे जिसका नाम है रिवर सियाने। रिवर सियाने के पास लोगों ने लाइन अप किया एंड द टॉर्च बेयरर्स had to move along the river course। बाकी सालों में मैम क्या होता है, बाकी सालों में ये ओलंपिक्स एक स्टेडियम में होस्ट किए जाते हैं जिसमें हर कंट्री अपने कैंडिडेट्स के साथ फ्लैग के साथ मार्च करती है एंड द स्पेक्टेटर्स एंजॉय द मोमेंट। बट इस साल फ्रांस ने ये कुछ अलग तरीके से किया और जान लीजिए ओलंपिक की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ओलंपिक्स किसी रिवर के सहारे होस्ट किए गए हैं। द नेक्स्ट इज द वेन्यू। नाउ हाउ डज अ कंट्री डिवाइड द इवेंट्स डिपेंड्स अपॉन द कंट्री इटसेल्फ। पेरिस में मोस्ट ऑफ द इवेंट्स होने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा 4 सिटीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ देम इज वर्साइलिस। वर्साइलिस क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्साइलिस विल होस्ट इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स। आप सोचेंगे मैम इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स क्या होता है? प्लीज याद रखिएगा, इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स आर ड्राइविंग, देन राइडिंग, देन मे बी स्विमिंग एक्सेट्रा। जो भी ऐसे इवेंट्स होते हैं वो किसी और सिटी में होस्ट हो रहे हैं जिसका नाम है वर्साइलिस। नाउ एक ऐसी सिटी भी पेरिस में चूज हुई है जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी दोनों होंगी, वो है सेंट डेनिस। सेंट डेनिस विल बी द ओनली प्लेस वेयर बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी विल हैपन। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी आर लिहारी एंड लिली, और क्योंकि इनमें भी कुछ कुछ इवेंट्स होस्ट किए जाएंगे एज रिलेटेड टू योर break dancing games, etc. After you have read about this, the next important thing that you should know, Olympics this year is being conducted for 32 sports. अब तक Olympics में पहली बार ब्रेक डांसिंग, बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ सबको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि which games for the first time has been included in the Paris Games. So you should know it is baseball, softball and break dancing. Now, what is the theme of this Olympics? Paris has hosted this Olympic on the idea of sustainability and environment saving. आप नोटिस करेंगे कि पेरिस ये दावा कर रहा है कि हमारा जो ओलंपिक है वो सस्टेनेबल है, वो एनवायरमेंट को बचाने के लिए है, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए है, और यही नहीं हम वेन्यूज को जो है एनर्जी एफिशिएंट बना रहे हैं बेस्ड ऑन आर रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट है कि हर बार हर देश अपनी प्रगति के हिसाब से ओलंपिक्स होस्ट करता है। होस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आप अपनी मैन पावर डिपिक्ट करते हैं, जी हमारे पास ये है नहीं। पेरिस ने इससे थोड़ा हट के एनवायरमेंट की तरफ ध्यान देते हुए ये ओलंपिक्स होस्ट करने का फैसला किया है। The tickets of this Olympics was sold in December 2023 only. They started ticketing in December 2023 for the reason that ज़्यादा से ज़्यादा लोग around the world could witness such a great event in the history. Now masquerades. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि मैम पहली बात तो इससे पहले ओलंपिक्स में कमेंट करके बताइए तुरंत इससे पहले ओलंपिक्स कहाँ हुए थे। जिसका भी सही जवाब रहा मैं हमारी चैनल की तरफ से आपको लाइक और सब लाइक जरूर मिलेगा। Mascots for the Paris Olympics is the Phrygies, a red Phrygian cap. अब ये एक कुछ इस तरीके से दिखने वाली टोपी है। And why this cap has been chosen as a masquerade? Because from the American Revolution time, this cap depicts that we stand for freedom. इसीलिए जब फ्रांस में ये आपको याद होगा रेवोल्यूशन हुआ जिसमें लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी पे बहुत बड़ा फोकस था, इस कैप को वहां का सिंबल माना गया एंड पीपल बिलीव दैट बाय वेयरिंग दिस कैप वी स्टैंड विद लिबर्टी। सो इन हियर इन टुडेस टाइम लिबर्टी सिंबलाइजेस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। हमारा फोकस है कि इस स्टार का जो थीम है वो फ्रिगेनियन कैप है। ये कैप क्या डिपिक्ट करती है? आपका फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। आप देखेंगे पेरिस का जो इवेंट है वो बहुत ही ज्यादा कल्चरली डाइवर्सिफाइड इवेंट रहेगा जिसमें हर कंट्री अपने गेम्स के साथ साथ अपने कल्चर को भी डिपिक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। आफ्टर दिस
हम आ जाते हैं इस वीडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसके लिए मैं आपसे हमेशा से कहती हूँ कि अगर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो वीडियो देख के मैम हम करेंगे ही क्या। हाँ जी, तो मैं अपने लिए पेरिस से 3 क्वेश्चंस लाई हूँ। In this video, we have only discussed about origin, symbols, traditions, and the association of Paris Olympics. इस वीडियो के बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी वो होगी इंडिया ओरिएंटेड पेरिस ओलंपिक्स, जब तक आपके पेरिस ओलंपिक्स भी खत्म हो जाएंगे। देखिए, प्लीज मार्क करिएगा, कमेंट करिए राइट आंसर को। व्हेन विल द पेरिस 2024 ओलंपिक्स टेक प्लेस? अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो यही आंसर तो आपको मार्क करने में 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। इट इज फ्रॉम जुलाई 26 टू August 11, 2024. Now the next question, which of the following cities will host an equestrian event? आप ये सोचेंगे, आप क्या करेंगे, आप जल्दबाजी में एग्जाम में क्या करने की रहते हैं, ऊपर से क्वेश्चन पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल होस्ट, अरे ये तो हमें आता ही है, इसका आंसर पेरिस होगा। नहीं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। हु विल होस्ट इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स? द इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स विल बी हेल्ड इन वर्सेलेस। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो मैंने सबको समझा दिया है इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स होते कौन से हैं। द नेक्स्ट इज, what is the primary emphasis of Paris 2024 Olympics on environment impact? मैंने आपको वहीं पढ़ाते हुए ये बहुत बोला था, बहुत ध्यान से समझने को कहा था कि सब इस पॉइंट को स्टार मार्क करके पढ़ेंगे, क्योंकि यस, टेल मी, कमेंट करिए क्या हो सकता है इसका आंसर। The correct answer is making the games carbon neutral and sustainable. After this is, I think, more than enough that you should know for your CLAT exam regarding Paris Olympics. जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंडिया के ऊपर फोकस करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।